University of Haryana is one of the 15 new central universities established by Ministry of Education, Government of India in 11 5-year plan from 2007 to 2012 under the Central University Act 2009 of the Parliament. The university has been accredited with A grade in the second cycle of NAAC assessment and accreditation conducted in August 2023. The university has been listed among the top 150 to 200 universities in NIRF ranking. The university is fully funded by the University Grants Commission. Permanent campus of the university is situated in 484 acres of land at Jantpali villages, Mahendragarh district of Haryana, from where CUH is running its academic operation. Presently, the university offers 83 academic programs, including UG, PG, and research. Central University of Haryana, which has been awarded A grade by the National Assessment and Accreditation Council, is continuously developing its capabilities. The university is on the path of development with new thinking, mutual cooperation, and partnership. The university is making special efforts for the education of students as well for skill development and placement. For this, the facility of training and placement center has also been developed in Gurugram. CUH is moving ahead, keeping the goal of all-round development of students at the center. The university is engaged in research innovation, skill development, as well as developing opportunities for employment generation. The university is striving to develop necessary modern facilities for the students in the field of higher education. In the direction of successful implementation of National Education Policy 2020, the university is moving ahead in a planned manner and for skill development and employment generation of the students. The university is working at the micro level through special training and placement centers. CUH is moving towards realizing the dream of self-reliant India, Saksham Bharat, and Strong India, as shown by the Prime Minister Shri Narendra Modi. My name is Meenakshi. I am doing PhD from Central University of Haryana from Department of Physics and Astrophysics. Today we are here in our lab, research lab. एक मशीन है जिसको बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. वी हैव दैट वेइंग मशीन. दिस इज द TJ DTA instrument. We have that GC gas chromatography. These all the cylinders we use for the gas chromatography. We have that muffle furnace for the temperature for 1500. Hello, I am Manisha from Department of Physics and Astrophysics. Here we are now in the synthesis lab of the physics department. So this one is ultrasonic probe sonicator and it can go up to a RPM of 4000 RPM. This one is muffle furnace. It can go up to a temperature of 900 degrees Celsius. This one is the fume hood. Whenever we do the synthesis, we do all the synthesis in the fume hood. This one is CVD technique. With the help of the CVD technique, we usually synthesize the graphene and reduce graphene oxide. I am Professor Sunita Srivastava, head of the department, and in this department we have around 14 faculty members. We have started with the integrated BSc MSc course. We have lots of specialization which includes nuclear physics, we have condensed matter physics, particle physics, we have theoretical condensed matter, material science, etc. And not only that, we also have astrophysics with us.
Myself, Tankeshwar Kumar, Vice Chancellor of Central University of Haryana. This university came in existence in 2009. यहाँ पर हम देखिए 8 हमारे पास स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें हमारे पास 34 डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे पास लॉ भी है, हमारे पास मैनेजमेंट भी है, सोशल साइंसेज भी हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज भी हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज भी हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं। और इसमें हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। इसमें हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, जिसे मैं कहता हूं कि जिसमें हमारे पास 4 ईयर का कोर्स जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये शुरू हुआ है। और हमने इसको इंटीग्रेटेड 4 ईयर शुरू करने वालों में मुझे लगता है कि हम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसने इसको शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी जो हैं अगले साल इस कोर्स को जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें अपनी एग्जैक्ट पॉलिसी को देते हुए वो अपना 3 ईयर या 4 ईयर जो है उसको वो चूज कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यहाँ पे सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन में एज ए मेंबर काम कर रहा हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एज ए मैं फैकल्टी हूँ। दैट इज द स्मार्ट इको फ्रेंडली कार। दिस इज ए स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन फ्री इंडिया। दैट इज द सोलर ग्रास कटर। जैसे आप देखते हो कि सोलर एनर्जी को हम अपने देश का आने वाला भविष्य देखते हैं, सोलर एनर्जी को हम आने वाला देश का जो फ्यूल के रूप में देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजों से हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो इस कड़ी में हमने सोलर ग्रास कटर बनाया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज भी देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में आज भी एक 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। उसमें भी बहुत सारे जो कहूँगा विद्वान हमारे साथ शामिल हैं। तो इस दिशा में हमारा विश्वविद्यालय में एक बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि ये हमारे में गीता के ऊपर और रामायण के ऊपर दोनों, तो उनके ऊपर जो है कि जिसे हम कहते हैं उसका मैनेजमेंट में क्या रोल है और साइंटिफिक एविडेंसेस वाल्मीकि रामायण में क्या है। हम ये चीज़ों को उस ढंग से तो जो पढ़ते हैं वो पढ़ाते ही हैं, लेकिन हम उसकी जो है प्रमाण रूपी जो है उसको तरफ बढ़ के जो है लोगों बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसमें हम सही समझता हूँ कि यदि हम अपने इतिहास के ऊपर गर्व करेंगे तभी हम इतिहास बना पाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उनको अपने ऊपर वो गर्व महसूस करें। और जो भारत का सपना है जो इस वक्त जो है कि 2047 तक हमें विकसित होना है, तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करें। इसलिए मैं विद्यार्थियों को जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम से है ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ। फ्यूचर प्लान जो है हमारे, देखिए हमारे रिसर्च को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। हमारे जो शोधार्थी जो हैं बहुत ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल मैंने जो पिछले साल देखा है कि हमारे शिक्षकों ने
लगभग 475 पेपर जो है स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पाए हैं और यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स जो है अभी 52 के आस पास है, 53 भी हो चुका है मुझे लगता है। तो उसमें जो है कि एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि कैसे विश्वविद्यालय जो है एक जिसे कहते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड उसकी तरफ बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा रिसर्च करने के साथ साथ ये ऐसी रिसर्च करेंगे जो हमारे सोसाइटीज़ के काम भी आए। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी जो विश्वविद्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए और हमारे शिक्षक जो है एक अच्छी रिसर्च की तरफ बढ़े जिसमें हमारे भारत को और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। कुछ साल पहले यहाँ पर लगभग 3000 विद्यार्थी थे, आज 4500 के आसपास हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं जितना GER में कंट्रीब्यूट कर सकूँ विद्यार्थी यहाँ और बढ़े, और विद्यार्थी बढ़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कोर्सेज बढ़ेंगे, टीचर बढ़ेंगे। तो उस सेंस में मैं ग्रोथ देखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि ग्रोथ देखना चाहता हूँ तो उसके साथ साथ गुणवत्ता भी उसमें देखना चाहता हूँ। तो गुणवत्ता में मैं जैसे चाहूँगा कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें जो है NIRF है, उसमें जो है हमारी रैंकिंग जो है अच्छी आए और हमारा ग्रेडिंग बढ़े। और इसमें यदि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे इसके साथ साथ, तो मैं समझता हूं कि हम एक जिसे कहते हैं हमारा सपना है कि हम इसको एक 10,000 स्टूडेंट हो हमारे पास और अच्छे हमारा कि पहले 100 में हम देखना चाहते हैं, उसकी तरफ हम अग्रसर करना चाहें। Central University of Haryana, building future.